Okay, welcome to this session. Next topic which we are going to cover here is material properties. Okay. In earlier topic, we discussed about the different type of materials and also grouped them in metals, polymers, ceramic, composites. We have many more materials here. Okay. So throughout the world, we have number of products and number of materials. Okay, but how we are going to choose them depends upon their properties. Okay, so that's why this topic is included here, so we have so that we can have the detailed discussion about their properties. Okay, so out of all those properties we have main properties here. First one is mechanical, then thermal property, then optical property, then electrical property, technological property, chemical property, magnetic property, and physical property. Okay, so as per syllabus we have only few properties here. Okay, so first one is mechanical properties. Okay, so what are mechanical properties? Basically, mechanical properties of a material, as per this definition also, mechanical properties of material help us to measure how materials will behave under load. ओके, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि अगर कोई मटेरियल अगर लोड उस पर लगता है तो वो कैसा बिहेव करेगा. ओके, सो वो उनमें जो प्रॉपर्टीज़ वो डेवलप हुई वो हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ उन्हें बोलते हैं. जैसे सपोज एज पर इज दिस डायग्राम ऑल्सो, जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें आपको देखो ट्रांसपेरेंट, दिस ट्रांसपेरेंट इज बेसिकली ओपेसिटी प्रॉपर्टी. ओके, लाइक दिस बेंडिंग, बेंडिंग में क्या लग रहा है, एक लोड लग रहा है एंड बेंड हो रहा है. सो सम मटेरियल बेंड, सम डू नॉट. So this is again mechanical property. Then rigidity, the softness, also call it ductility, this hardness. Okay, so we are going to have some little knowledge about this various type of mechanical properties. Okay, so mechanical properties of it also shows the relationship between its response to deformation from an applied loads of force. Means to say कि जब कोई फोर्स लगता है तो वो कैसा उसका बिहेवियर रहेगा, वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हुआ. ओके, सो आउट ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ वी हैव सम different types of mechanical properties. The first one is we have number of properties here, like strength, elasticity, stiffness, flexibility, plasticity, ductility, malleability, toughness, resistance, hardness, brittleness, creep, fatigue, machinability. All these are mechanical properties. Okay, so we are going to study one by one. Okay, and it is very important to remember this mechanical property throughout the chapter, throughout this subject, throughout this syllabus, because these properties are going to be used again and again. Okay, so ये याद भी रखनी पड़ेगी आपको और इनके नाम भी याद रखने पड़ेंगे, इसके मीनिंग भी याद रखना पड़ेगा बिकॉज वो बार बार यूज़ होंगे ये प्रॉपर्टीज़. ओके, सो फर्स्ट वन इज स्ट्रेंथ, है ना. First one is strength. So strength is what? Strength is the property of is a mechanical property of material which opposes the deformation or breakdown of material in presence of external force or load. Means to say कि अगर सपोज कोई आप बार है, बार को आप पुल कर रहे हैं दोनों साइड से. ओके, सो एक बार है, आप उसको पुल कर रहे हैं दोनों साइड से, तो उस पर वो क्या होगा, उस पर लोड लगेगा. लोड लगेगा तो जैसे आप बात करें सिंपल, एक मेटल बार है, एक माइल्ड स्टील की बार है, आप उससे पुल कर रहे हैं दोनों तरफ से, तो एक उसमें इलॉन्गेशन होगी और कुछ टाइम बाद वो टूट जाएगा. बट कितनी फोर्स की ज़रूरत पड़ी पर यूनिट एरिया, दैट इज स्ट्रेंथ. ओके, कि बेसिकली स्ट्रेंथ इज व्हाट, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू पर यूनिट एरिया टू इलॉन्गेट दैट माइल्ड स्टील, है ना. कितनी ज़रूरत पड़ी उस स्टील को इतना फोर्स लगाने की कि वो खींचते खींचते हमारा एक टूट गया. ओके, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, एक रबड़ है, रबड़ की एक बार है, एक मेटल की बार है, तो डेफिनेटली मेटल बार में ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी पर यूनिट एरिया, और सो वी कैन से दैट स्ट्रेंथ ऑफ मेटल बार इज़ मोर देन एज कम्पेयर टू रबड़ बार. ओके, सिमिलरली वी कैन से फॉर ऑल्सो और प्लास्टिक बार ऑल्सो. ओके, सो दैट इज स्ट्रेंथ. इसमें हमारी अलग स्ट्रेंथ आती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं हम इसे. अगर हम कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं तो कंप्रेसिव फोर्स, अगर हम शेयरिंग फोर्स लगा रहे हैं तो शेयर स्ट्रेंथ भी बोलते हैं. अगर हम उसे ट्विस्ट कर रहे हैं, टोरिजन स्ट्रेंथ भी आता है फिर. ओके, दीज आर ऑल
सब पार्ट्स ऑफ द स्ट्रेंथ. ओके, इन बेसिक टर्म स्ट्रेंथ आपका क्या मीनिंग करेगा कि हम एक्सटर्नल लोड लगा रहे हैं और इलोंगेशन हो रही है और रप्चर पॉइंट से और ब्रेकिंग पॉइंट से पहले कितना फोर्स रिक्वायर्ड था, तो वो आपका स्ट्रेंथ हुआ. ओके, सो तभी आपका ब्रिजेस में यूज़ होता है मेटल, माइल्ड स्टील यूज़ होता है, या आपके बेसिकली स्टील यूज़ होते हैं, क्यों? बिकॉज उनकी स्ट्रेंथ हाई होती है. हाई लोड पे भी वो इलोंगेट थोड़े कम होते हैं और विद स्टैंड रहता है हाई लोड्स में भी. ओके, रप्चर नहीं होते हैं इजीली. सो दैट इज स्ट्रेंथ. ओके, सेकेंड वन इज टफनेस. टफनेस इज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड ability of material to absorb energy and gets plastically deformed without fracturing. What? Without fracturing means to say, is itself clear from this definition that it is ability of material to absorb the energy. means to say कि अगर कोई मटेरियल एक उस पर शॉकिंग एक एनर्जी लग रही है, जैसे हम हैमरिंग करते हैं. ओके, हम हैमरिंग करते हैं, हैमर लेते हैं हम और मटेरियल के ऊपर मारते हैं, तो लाइक ग्लास के ऊपर मारे वो टूट जाएगा, वो टूट जाएगा, वो इट विल ब्रेक डाउन इनटू नंबर ऑफ पीसेस. whereas you put that hammer and you blow that hammer on a wooden block, एक वुडन ब्लॉक के आप ऊपर उसको मारें तो वो पीसेस में नहीं टूटेगा. इट मीन्स दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड टफनेस, कि एक जगह वो उस शॉक को एब्जॉर्ब कर रहा है और दूसरी जगह वो नहीं कर पा रहा है. सो वी कैन से हियर दैट वुडन ब्लॉक इज हैविंग मोर टफनेस एज कंपेयर टू ग्लास मटेरियल. Okay, so that's why it is written here in this definition, that is ability of material to absorb energy and get plastically deformed without fracturing. means plastically deform हो जाए कोई इशू नहीं है, बट फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए. इसका ब्यूटीफुल एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा कि हमारे बाइक में यूज़ होता है. बाइक के जो आपके रिम होते हैं, दे आर डिज़ाइन इन सच अ वे टू हैव मोर टफनेस. वो इस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो टफनेस रहे, बिकॉज वो बार बार जैसे पोथोल्स में, गड्ढों में बार बार जाएंगे तो इम्पैक्ट पड़ेगा तो इम्पैक्ट वो एक इम्पैक्ट पड़ेगा और उस पर लोड पड़ेगा सडन. तो अगर टफ नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, वो टूट सकता है. और अगर वो टफनेस हुई तो एब्जॉर्ब कर लेगा उस एनर्जी को. वो बैंड हो जाए, वो बैंड भी हो सकता है, नो इशू, बट इट विल नॉट ब्रेक इनटू नंबर ऑफ पीसेस. वो नंबर ऑफ पीसेस में टूटेगा नहीं एकदम से. Okay, firstly it will try to absorb that energy. Okay, so toughness is that property of the material. Okay, so again we have number of points related to this toughness, and that value of toughness is can be determined by stress and strain diagram. For good toughness, material should have good strength and as well as good ductility. Okay, at the last I will discuss that material, these all mechanical properties are interrelated. Okay, firstly here we are going to discuss it one by one. Okay, so in the end I will discuss about that. Okay, so next property is hardness. It is what? It is the ability of material to resist permanent shape change due to external stress. Okay, means to say हार्डनेस बेसिकली अगर ब्रॉड टर्म में, ऐसे जनरल टर्म में हम इसे डिस्कस करें तो हार्डनेस इज रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन स्क्रैचिंग. कि आप अगर सपोज बाय यूजिंग, ये सिंपल सा प्रोसीजर रहता है इसका, अगर आपने जनरल ऐसे ही लेमैन में आपने समझना है कि जैसे सपोज आप एक आयरन नेल लिया आपने, उसको आपने एक मेटल है उसके ऊपर स्क्रैच किया और एक वुडन ब्लॉक है उसके ऊपर स्क्रैच किया, तो डेफिनेटली एज पर ऑब्जर्वेशन आई कैन से डेट स्क्रैचिंग जो वुडन ब्लॉक पे रहेगी वो ज़्यादा रहेगी, एंड वेयर स्क्रैचिंग ऑन दी मेटल विल बी लेस. ओके, सिमिलरली अगर हम उसे हम पिनअप करना सोचें, मतलब उसे हम आयरन नेल से हम उसे पुश करें तो मेटल में इंडेंटेशन नहीं होगा, गड्ढा नहीं होगा, वेयर एज इन वुडन ब्लॉक में आपका इंडेंटेशन ज़्यादा होगा, जो होल की बात करें वो ज़्यादा होगा. ओके, सो ये बेसिक मीन्स टू से, जो अगर आपका स्क्रैचिंग और इंडेंटेशन किसी मटेरियल में इजीली हो जा रही है देन इट मीन्स इट इज़ नॉट हार्ड. ओके, और अगर इट मीन्स इट इज़ नॉट हार्ड, और अगर किसी मटेरियल में आपकी इंडेंटेशन आपकी स्क्रैचिंग इजीली नहीं हो रही है तो इट मीन्स इट इज़ हार्ड. ओके, सो
so hardness we can also say that it is resistance to indentation and scratching. That's why the second point here is there are various measures of hardness: scratch hardness, indentation hardness, rebound hardness. Means hardness आपका ये रहेगा. So you have to have distinguish between this toughness and hardness. ये आपको distinguish करना है toughness और hardness में कि toughness is ability of material to absorb shock. जो इम्पैक्ट एनर्जी पड़ रही है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको एब्जॉर्ब करने की जो प्रॉपर्टी है वो टफनेस हुई. वेर एज इंडेंटेशन स्क्रैचिंग की रेजिस्टेंस जो है वो हमारी हार्डनेस हुई. ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ब्रिटलनेस. ब्रिटलनेस ऑफ मटेरियल इंडिकेट्स हाउ इजीली it get fractured when it is subjected to force or load. Okay, when a brittle material is subjected to stress, it observes very less energy and get fractured without significant strain. Means to say, brittleness एक ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसमें वो without getting much plastically deform, but deformation means change in the shape, है ना. शेप में जब जैसे हम किसी चीज़ के ऊपर किसी भी मटेरियल के ऊपर हम फोर्सेस लगाते हैं एक्सटर्नल, तो इट ट्राइज टू गेट डिफॉर्म होने की कोशिश करता है. जैसे रबर है, रबर को हम खींचेंगे तो लंबा हो जाएगा और कंप्रेस करेंगे तो छोटा भी हो जाएगा साइज़ में. ओके, सो वैसे ही हम किसी मटेरियल पे फोर्स लगाएंगे, इसमें दो चीज़ें आती है. एक होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन, एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. इलास्टिक डिफॉर्मेशन मीन्स कि अगर हम किसी मटेरियल को डिफॉर्म कर रहे हैं और वो आफ्टर रिमूवल ऑफ दैट फोर्स हमने फोर्स हटा दिया और उसके बाद वो अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर जा रहा है जितने जैसे पहले था. सपोज 1 मीटर का एक मटेरियल था और हमने फोर्स लगाया और वो लॉन्गेट हुआ 1.2 मीटर हो गया, बट आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स वो वापस 1 मीटर हो गया. तो वी कैन से जो 0.2 मीटर का आपका इलॉन्गेशन हुआ डेट इज इलास्टिक इलॉन्गेशन, और वी कैसे इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ, इलास्टिक हुआ क्योंकि वो वापस रिगेन हो गया. वेरेज अगर वो परमानेंटली डिफॉर्म हो गया, परमानेंटली आपका डिफॉर्मेशन हो गया 1.2 का, अगर हमने रिमूव भी कर दिया फोर्स और 1.2 ही है, तो देन वी कैन से दैट इट इज़ प्लास्टिकली इट हैज़ प्लास्टिकली गेट डिफॉर्म्ड, तो प्लास्टिकली डिफॉर्म हो चुका है. ओके, सो मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी रहती है, पहले वो ट्राई करता है थोड़ा इलास्टिकली डिफॉर्म होने की, देन इट गोज टू प्लास्टिक. ओके, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स है. ओके, सो व्हाट इज दिस ब्रिटलनेस. ब्रिटलनेस है, ब्रिटलनेस मीन्स कि वो उसकी इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी बिल्कुल ना के बराबर होगी. दैट्स वाई इट इज़ रिटन हेयर विदाउट सिग्निफिकेंट स्ट्रेन. स्ट्रेन में होता है चेंज इन साइज ऑफ द मटेरियल की साइज, जैसे चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, मीन्स इट रिप्रेजेंट चेंज कि आपके साइज में क्या चेंज हुआ. सो ब्रिटल जैसे आपका सपोज बेस्ट एग्जांपल इज ग्लास को आप इसको फोर्सेस लगाएंगे, जब लगाते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन नहीं दिखती है, और ज़्यादा आप उसमें फोर्स एक्सीड करो, इंक्रीज करो, अल्टीमेटली इट विल गेट ब्रेक. वो टूट जाता है एकदम से विदाउट एनी डिफॉर्मेशन. आपको पता नहीं चलेगा कि वो टूटने वाला है कि नहीं टूटने वाला है. ओके, वेरेज आप किसी और मटेरियल की लाइक बेस्ट एग्जांपल हेयर इज रबर अगेन. ओके, रबर को आप फोर्स लगाओ उसका एरिया रिड्यूस हो जाएगा, एरिया रिड्यूस होगा, वो प्लास्टिकली डिफॉर्म होगा और आपको पता लग जाएगा वो टूटने वाला है. ओके, सो ब्रिटलनेस मीन्स द मटेरियल विच गेट्स ब्रोक विदाउट गेटिंग सिग्निफिकेंट स्ट्रेन. ज़्यादा बिना स्ट्रेन लिए हुए वो एकदम से टूट जाता है. सो एग्जाम्पल हेयर इज अगेन ग्लास. ओके, और भी एग्जांपल है, जैसे हमारे टूल्स होते हैं, हमारे हाई हार्डनेस वाले टूल होते हैं, जैसे हाई स्पीड स्टील है आपका, वो ब्रिटल भी होते हैं. वो हार्डनेस कम्स विद ब्रिटलनेस. अगर ब्रिटल है कोई मटेरियल तो वो हार्ड भी होगा, क्योंकि उसमें अगर जैसे हम टूल की बात करें, टूल हमारे हार्ड होते हैं. ब्रिटल भी क्यों होते हैं? हार्डनेस इसलिए होती है ताकि वो ड्यूरिंग ऑपरेशन वो बैंड आप उसमें स्क्रैचिंग ना हो, उसमें कोई होल ना हो, उसमें स्क्रैचिंग ना पड़े, इंडेंटेशन ना हो. ठीक है, इसलिए वो हार्ड होते हैं, इसलिए हार्ड बनाए जाते हैं. और ब्रिटलनेस भी क्यों हो जाती है? वो ऑटोमेटिकली आती है, बिकॉज अगर वो ब्रिटल नहीं होगा वो डिफॉर्म भी हो सकता है, डिफॉर्म हो सकता है. सो हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस आर इंटर रिलेटेड. इफ़
material is hard, it is most probably that it is also going to be brittle. Okay, brittle भी हो सकता है. Then next property is malleability. Malleability means property of material which indicates how easily material gets deformed under compressive forces. Means compressive force लगा के वो malleability means is related, very much related to the sheets. अगर कोई material sheets के form में आ रही तो मीन्स इट इज़ malleable. हम अगर वो कब होता है, अगर compressive force लगे. अगर एक कोई मेटल है बाहर है आपकी, उसे हम कंप्रेस कर रहे हैं, ओके, कंप्रेस हो के वो एक शीट की फॉर्म में रह जा रहा है, तो मीन्स जैसे हम बेस्ट एग्जांपल इसका आपका होता है एल्यूमिनियम की शीट्स होती हैं, आपकी सिल्वर की शीट्स होती हैं, आपकी दिस गोल्ड की शीट्स होती हैं. ये दिस आर ऑल मटेरियल आर मेलेबल. जब हम कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो ये शीट की फॉर्म में हो जाता है. सो दैट इज़ मेलेबिलिटी. ओके, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी. डक्टिलिटी मीन्स ductility is a property of solid material which indicates how easily a material gets deformed under tensile stress. Means to say, ductility is related with the wire drawing. कि अगर कोई आपका मटेरियल इजीली वायर की फॉर्म में इजीली मतलब वो टेंसाइल हो जाए, मीन्स एकदम इलोंगेट हो जाए लेंथ में, तो मीन्स वो डक्टाइल है. ओके, वो क्या है, डक्टाइल है. जैसे हमारी रेलिंग्स में आपकी वायर्स लगी होती है, आयरन वायर लगी होती है. वो वायर्स बनी होते हैं क्योंकि उसे हम इलोंगेट करके वो वायर की फॉर्म में बनाया होता है. ओके, जैसे लाइक हेयर वी हैव अनदर पॉइंट हेयर. डक्टिलिटी इज ऑफन कैटेगराइज्ड बाय द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू गेट स्ट्रेच्ड इनटू वायर्स बाय पुलिंग और ड्राइंग. ओके, बट पुलिंग मीन्स टेंसाइल फोर्स लग रही है, खींचना हो गया, और ड्राइंग जैसे हमारी कॉपर वायर्स होती है, आयरन वायर्स होती हैं, ये खींच के हमारी क्या होती है, लंबी हो जाती है. सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी. देन वी हैव फटीग हेयर. फटीग इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इज कॉज्ड बाय रिपीटेड लोडिंग ऑफ मटेरियल. When material is subjected to cyclic loading and loading greater than the certain threshold value but much below the strength of material. Okay, what it means, fatigue is the property of material. Okay, इसमें क्या होता है कि like say I'm going to give you one beautiful example here. During construction आपकी एक वायर्स होती हैं, इसकी लोहे की वायर्स होती हैं. कई बार आपने देखा उससे आप वो ऐसे कटती नहीं, तो हम उसे ऊपर नीचे करते हैं, साइक्लिक लोडिंग देते हैं ऊपर नीचे. लाइक से आई एम गोइंग टू आई ट्राई टू ड्रॉ सम शेप हेयर सो दैट यू कैन हैव बेटर व्यू. ओके, लेट्स टेक दिस डायग्राम हेयर. ओके, आपकी सपोज वायर है, हम क्या करते हैं इसे, आपने देखा होगा अगर इसे हमने बीच से काटना है, यहाँ से इसके दो पीसेस करने हैं, तो कई बार हम क्या करते हैं, समटाइम्स वी यूज टू वन मोर, गिव मी 1 second. दिस वन. ओके, हम क्या करते हैं, इसे साइक्लिक लोडिंग करते हैं, हम ऊपर नीचे करेंगे इसे. पहले इस डायरेक्शन में हम इसे पुलअप करेंगे, फिर इसे नीचे के डायरेक्शन में पुलअप करेंगे. इस डायरेक्शन में नीचे पुलअप करेंगे. मीन्स से ऊपर नीचे मीन्स अप एंड डाउन मोशन करेंगे. और अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. यहाँ से क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से, आई एम गोइंग टू जूम हेयर, ultimately it is going to break from this point. Okay, so what you are doing is you are giving the cyclic loading means you are giving this tensile and compressive force here. Okay, आप ऊपर नीचे कर रहे हैं, उससे क्या हो, साइक्लिक लोडिंग दे रहे हैं और अल्टीमेटली टूट गया. अदरवाइज इसकी जो लिमिट थी, अदरवाइज वो इतनी फोर्स में नहीं टूटता है मटेरियल. ओके, व्हाट इट मीन्स फटीग हियर इज कि ये फटीग इटसेल्फ मीन्स थक जाना. ओके, सो वहीं से आया है ये. फटीग इज वीकनिंग ऑफ मटेरियल बाय रिपीटेड लोडिंग ऑफ मटेरियल.
ये तब होता है जैसे सपोज कोई मटेरियल है और एज पर स्पेसिफिकेशन कहा गया कि वो 100 न्यूटन का फोर्स में भी वो विथ स्टैंड करेंगे, आफ्टर 100 न्यूटन वो ब्रेक कर जाएगा। ओके, बट बाय दिस फटीग मेथड से हम क्या करते हैं, उसको 10 न्यूटन 100 न्यूटन के बजाय हम 10 न्यूटन में भी उसे तोड़ सकते हैं। वो कैसे होगा, जब हम साइक्लिक लोडिंग देंगे, अप एंड डाउन मोशन देंगे और टूट जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, मटेरियल थक जाता है, और वही टर्म हमने यूज़ की फटीग लोडिंग। ओके, so these are all mechanical properties. So as per syllabus we have to cover some of properties, not all these properties. We just have to cover some properties. Okay, but here I'm going to give you some other I'm going to give you knowledge about some other properties also, like this creep here. Creep क्या होता है? Creep is टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन, मीन्स कि ऐसे डिफॉर्मेशन जो टाइम के डिपेंडेंट हो। लाइक से आपकी बेस्ट एग्जांपल होता है जो आपने जैसे आयरन की वायर होती है, आपने अपने कपड़े सुखाने के लिए होता है रखा हुआ आपने, विद टाइम क्या हो जाता है, वो इलोंगेट हो जाती है, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है और वो बैंड आने लग जाता है। अल्टीमेटली क्या होता है, विद टाइम वो टूट जाएगा। देखो उसमें कोई लोड नहीं लग रहा है, उसका अपना ही लोड है, जो अपना ही वेट है जो लोड लग रहा है। ओके, so creep is what, time dependent deformation. It is said is time dependent deformation. कई materials के लिए creep and the property is called creep strength, how it is resistant to that creep. Okay, so कई materials जैसे आयरन की बात करूँ, आयरन माइल्ड स्टील बेसिकली वायर्स होती हैं, वो माइल्ड स्टील वायर्स is having less creep strength. उनकी creep strength क्या है, कम है, means to say with time वो deform हो जाएगा। Okay, whereas some more hard material possesses high creep strength. Okay, जो hard material होता है वो easily deform नहीं होते, उसमें plastic deformation नहीं होती, so वो आपका creep strength उनका high रहता है। Okay, so all these properties are interrelated. Strength, elasticity. Okay, strength is what, again I am going to summarize here is mechanical properties. Okay, as per syllabus we just have to have little knowledge of mechanical properties. Okay, in next semester of strength of material you will going to have the detailed knowledge about these properties. Okay, so till now as far as syllabus concerned, we just have to have knowledge about some little knowledge about these properties. Okay, so first we have talked about this strength is the property of material by with which it withstand on when applied is load, when load is applied on that material. जब मटेरियल के ऊपर लोड लगता है तो कितना विद स्टैंड करता है, दैट इज स्ट्रेंथ। इलास्टिसिटी मीन्स कि लोड लगने पे वो मटेरियल डिफॉर्म हो जा रहा है और लोड हटने पे वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ रहा है कि नहीं, दैट इज इलास्टिसिटी। ओके, देन दिस डक्टिलिटी, एबिलिटी टू बी ड्रॉन इन टू वायर्स, अगर वायर में की फॉर्म में इजीली, या मतलब टेंसाइल फोर्स हम लगा रहे हैं और हम पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं और इजीली वो खींच जा रहा है, तो दैट इज डक्टिलिटी। ओके, मेलेबिलिटी सेम, अगर हम टेंसाइल फोर्स की जगह हम कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाएं, उसे हम प्रेस करें और शीट के फॉर्म में बन जाए तो हम बोलते हैं उसको मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी है। ओके, देन दिस टफनेस मीन्स कि इम्पैक्ट पड़े, जब एकदम से कुछ लोड पड़े एकदम से, तो वो उस लोड को से वो एब्जॉर्ब कर सकता है मटेरियल के नहीं। ability of material to absorb that shock is called toughness before rupture से पहले, and resilience is up to the breaking point. Is resilience is related with toughness. Okay, resilience is the ability of material to get ability of material to absorb shock at its breaking point. ठीक है, breaking point तक हम consider करते हैं। Then this है hardness is resistant to indentation and scratching. Brittleness is how material is going to be break. Okay, is it going to get break into number of pieces without any plastic deformation, है ना। जैसे ग्लास का एग्जांपल लिया था कि ग्लास जब हम उसमें लोड लगाते हैं तो बिना डिफॉर्मेशन के प्लास्टिकली डिफॉर्म हुए हमें पता नहीं चलेगा कि वो प्लास्टिकली और इलास्टिकली डिफॉर्म हुआ है कि नहीं, और एकदम से टूट जाएगा। दैट प्रॉपर्टी और दैट बिहेवियर इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। ओके, देन क्रीप, ये मैंने आपको बता दें। फटीग इज दैट the cyclic loading fatigue strength, means to say
this property is called fatigue strength. Okay, fatigue is ability of material to withstand that cyclic loading. जैसे बेस्ट एग्जांपल इज जिस ब्रिजेस होते हैं, ब्रिजेस के ऊपर हमारा लोड ट्रक या फिर हमारे व्हीकल्स जाते रहते हैं, कभी कम लोड किए जाते हैं, कभी ज़्यादा लोड के, सो दैट ब्रिज इज सब्जेक्टेड टू साइक्लिक लोडिंग. So is it able to going to withstand on that cyclic loading or not? वो साइक्लिक लोडिंग जो लग रही है, ट्रक कभी आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो वो कम लोड में भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो फेल हो जाए. ओके, सो अगर वो उसकी एबिलिटी है कि उस साइक्लिक लोडिंग में वो सस्टेन हो जाएगा, वो रिटेन रह जाएगा, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फटीग स्ट्रेंथ. ओके, अगर नहीं तो वी कैन से दैट इट इज़ हैविंग लेस फटीग स्ट्रेंथ. ओके, देन मशीनेबिलिटी मीन्स हाउ इजीली मटेरियल कैन बी मशीन्ड. हम प्रोडक्शन करनी है, सपोज हमने उसमें एरिया रिड्यूस करना है, हमने ड्रिलिंग करनी है, सो हाउ इजीली द मटेरियल कैन बी मशीन्ड. ओके, सो द स्टिफनेस इज अगेन कि डिफॉर्मेशन, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 1 mm डिफॉर्मेशन. मतलब सिंगल यूनिट डिफॉर्मेशन करना है तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड है. लाइक से रबर इज नॉट स्टिफ बिकॉज इट रिक्वायर्स वेरी लेस फोर्स एज कम्पेयर टू वी कैन से अबाउट दिस मेटल बार. अगर हम आयरन बार और एक रबर बार की बात करें, रबर में हमारे को कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी अगर हमने 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर की डिफॉर्मेशन करनी है. वेरेज अगर हमने मेटल बार की डिफॉर्मेशन करनी है तो उसमें ज़्यादा फोर्स रहेगी. सो वी कैन से मेटल बार इज मोर स्टिफ एज कम्पेयर टू this rubber bar. Okay, so earlier I was talking about that all these mechanical properties are interrelated. Okay, so I am going to summarize here one, and this is very important. I am going to summarize here that if material is ductile, okay, I am going to write here, if material is ductile, if material is ductile, then it is going to be अगर वो डक्टाइल है तो इट इज़ गोइंग टू बी टफ. वो टफ भी होगा. ओके, टफ भी होगा. वो उसकी स्टिफनेस क्या होगी, लेस स्टिफनेस होगी, क्योंकि स्टिफ तो होगा नहीं वो. अदरवाइज स्टिफ होता तो वो इलोंगेट नहीं होता. ओके, तो लेस स्टिफनेस होगी. और बात करें हम मेलिबिलिटी गुड मेलिबिलिटी होगी, बैड मेलिबिलिटी नहीं होगी, गुड मेलेबल होगा. और हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, मैं जैसे बात करता हूँ फटीग स्ट्रेंथ क्या होगी इसकी, फटीग में देखो, फटीग में उसकी लेस फटीग स्ट्रेंथ होगी, इजीली टूट सकता है. फटीग स्ट्रेंथ क्या होगी, लेस होगी. क्रीप स्ट्रेंथ क्या होगी, लेस क्रीप स्ट्रेंथ. लेस क्रीप स्ट्रेंथ मीन्स कि क्रीप को होने, मतलब क्रीप स्ट्रेंथ मीन्स कि क्रीप ना होने देना. रेजिस्टेंस अगेंस्ट क्रीप स्ट्रेंथ मीन्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट क्रीप. सो इफ मटेरियल इज डक्टाइल then it will have less resistance to creep. तो वो बहुत पॉसिबिलिटी है कि क्रीप की वजह से वो मटेरियल फेल हो जाएगा. मीन्स वो अगर हम उसको टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन बोलते हैं उसे, तो वो टाइम के हिसाब से वो डिफॉर्म हो जाएगा. विद टाइम वो डिफॉर्म हो जाए. लाइक मैंने एग्जांपल दिया था आपको वायर का. एक वायर हम जैसे बाहर लगाते हैं हम कपड़े सुखाने के लिए, तो विद टाइम वो क्या हो जाता है, इलोंगेट हो जाती है. इलोंगेट होकर वो फेल हो जाता है क्योंकि उसका फंक्शन जो हमारा था वो नहीं रहता है. सो लेस क्रीप स्ट्रेंथ. ओके, देन वी विल टॉक अबाउट दिस. इफ मटेरियल इज ब्रिटल, अगर मटेरियल ब्रिटल है फिर क्या होगा, अगर कोई मटेरियल ब्रिटल है तो वो हार्ड भी होगा. क्या होगा,
हार्ड भी होगा। अगर वो हार्ड है, कोई मटेरियल मतलब ब्रिटल है, इट मीन्स कि वो प्लास्टिकली डिफॉर्म नहीं हो रहा है, वो प्लास्टिकली इलास्टिकली डिफॉर्म नहीं हो रहा, उसमें डिफॉर्मेशन बहुत कम है। डिफॉर्मेशन कम है तो वो मतलब उसमें इंडेंटेशन, उसमें स्क्रैचिंग भी नहीं होगी, तो इट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी हार्ड। अगर डिफॉर्मेशन नहीं होगी तो एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब करेगा? सो मीन्स इट मीन्स लेस टफनेस, लेस टफनेस। ओके, तो डक्टिलिटी में क्या हो गया? ब्रिटलनेस एंड डक्टिलिटी आर ऑपोजिट। डक्टाइल मीन्स डिफॉर्मेशन हो जाना इजीली, ब्रिटल मीन्स नो डिफॉर्मेशन एट ऑल, बहुत ही बिल्कुल नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन। ओके, सो इफ मटेरियल इज ब्रिटल, इट इज पॉसिबिलिटी दैट इट इज वेरी मच पॉसिबिलिटी दैट इट इज हार्ड, इट इज गोइंग टू बी हार्ड, इट इज गोइंग टू बी लेस टफ। बट स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ हो भी सकती है, नहीं भी। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बात करूं कि जैसे ग्लास की बात करूं, ग्लास इज व्हाट? ब्रिटल एंड इट इज़ हार्ड ऑल्सो एंड लेस टफ ऑल्सो। अब स्ट्रेंथ की बात करें, मैंने आपको बताया इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इज, स्ट्रेंथ में नंबर ऑफ टर्म्स यूज होती हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ, अगर हम खिंचावट देखें उसका, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर हम कॉम्प्रेसिव मतलब से प्रेस करें तो दैट इज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। देन थर्ड वन इज शेयर स्ट्रेंथ, अगर हम उसे शेयरिंग कर रहे हैं, हम उसे जैसे हम मोड़ते हैं किसी चीज़ को, तो दैट शेयरिंग स्ट्रेंथ इज नॉट गुड of that glass. Okay, so but there is much possibility that it is going to have high strength. Okay, so what about creep? Creep की strength, high creep strength। अब वो जब डिफॉर्म ही नहीं होगा, जब वो डिफॉर्म की पॉसिबिलिटी, उसकी डिफॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी कम है, तो वो उसमें क्रीप का जो बिहेवियर है वो भी नहीं होगा, वो विद टाइम वो अपना डिफॉर्मेशन नहीं होगा उसमें। सो इट इज़ गोइंग टू हैव गुड क्रीप स्ट्रेंथ, इट इज़ गोइंग टू हैव गुड क्रीप स्ट्रेंथ। ओके, सो लेट्स गो टू दिस नंबर ऑफ दिस, व्हाट एल्स वी हैव, दिस stiffness, we can have this stiffness also. Okay, stiffness, what about stiffness? Yes, if material is brittle, it is, there is most probability that it is going to have high stiffness, high stiffness। stiffness कैसे होगी? high stiffness होगी, means more load is required, more force is required to have 1 mm और unit deflection। बहुत ज़्यादा फोर्स की जरूरत होगी कि अगर हमने 1 यूनिट का डिफ्लेक्शन करना है। ओके, सो लाइक आई सेड, these all properties are interrelated. Okay, so again I am going to summarize here that we have this material properties. Under this material properties we are discussing here is mechanical properties, and under this mechanical properties we have these number of properties here: strength, elasticity, stiffness, flexibility, plasticity, resilience, creep, machinability, fatigue, brittleness, tough, malleability, hardness, ductility, and elasticity. Okay, so again I am like I said that these properties are interrelated. If material is ductile means deformation हो जाना easily, then there is much possibility कि वो tough भी होगा। क्यों? अगर डिफॉर्म हो जाएगा तो absorb करेगा एनर्जी, तो इट मीन्स इट इज़ टफ। ओके, देन स्टिफनेस कैसे होगी? लेस स्टिफनेस, क्योंकि कमी फोर्स की जरूरत है उसके यूनिट डिफ्लेक्शन की, इजीली वो डिफॉर्म हो जा रहा है, तो मीन्स कम फोर्स की जरूरत पड़ रही है हमें, सो इट मीन्स लेस स्टिफनेस। एंड देन गुड मशीनेबिलिटी, गुड वन थिंग इज डक्टाइल में क्या होगा? गुड मशीनेबिलिटी, क्योंकि मशीनेबिलिटी, ओके, गुड मशीनेबिलिटी, क्योंकि वो सॉफ्ट होता, डक्टाइल होगा तो मशीनेबिलिटी भी उसकी ईजी रहेगी। ओके, सो स्टिफनेस भी उसकी क्या रहेगी? कम रहेगी। गुड मेलेबल रहेगा वो। फटीग स्ट्रेंथ भी उसकी क्या रहेगी? कम रहेगी, क्योंकि वो डक्टाइल है तो इजीली वो आपका बैंड हो सकता है, बार बार साइक्लिंग लोडिंग हम दे सकते हैं, तो देयर इज मच पॉसिबिलिटी कि उसकी फटीग स्ट्रेंथ भी कम होगी। क्रीप स्ट्रेंथ भी क्या होगी? कम होगी। क्रीप स्ट्रेंथ कम होगी मीन्स वो क्रीप से फेलियर हो सकता है उसका। लेस फटीग स्ट्रेंथ मीन्स फटीग फेलियर हो सकता है। ओके, then coming to this brittle, if material is brittle, it means it is very hard,
इट मे बी हाई हार्डनेस होगी, हाई हार्ड, लेस टफनेस, टफनेस क्या होगी, कम होगी, और स्ट्रेंथ कैसी रहेगी, हाई स्ट्रेंथ रहेगी, एंड हाई गुड क्रीप स्ट्रेंथ, क्रीप स्ट्रेंथ कैसी रहेगी, गुड हाई, हाई रहेगी, मीन्स the possibility of getting failed by creep is very less as compared to this ductile metal. Okay, if okay, then and then what about the stiffness? High stiffness means much more force is required to have this 1 unit deflection. Okay, so this is all about this properties, mechanical properties. These are all very important properties. You have to remember the different name of these properties and with the meaning of their uh, words. Okay, so let's go to second property, that is thermal properties. Okay, thermal properties.